So today we will discuss about Somavanshi dynasty, and yesterday we had discussed about Kalinga War and its significance, as well as Kharwal dynasty and the Bhaumakara dynasty, right? This This call is call is now now being being recorded. recorded. This call is now being recorded. So I hope you all are good and କିଛି doubt ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧେ. So we can proceed then. Somavanshi dynasty. So in this Somavanshi dynasty or in the Odisha dynasty, every dynasty, what I had told you, I have given a framework to everyone that we will first discuss about the introduction, and after the introduction we will understand the background about that as well as the sources from where actually we are getting the information about this dynasty, and then the political diagram, the political map. So first introduction, okay, then background, then sources from where actually we are getting the information. After that, a flowchart of significance, and then the detailed significance, the political significance, what their contribution in the administration, their contribution in the military or the economic or the cultural religious significance, or in the social significance, every kind of significance, or the contribution in the history. So we have to write that, okay, and then at last explaining this flowchart we will conclude. So this will be the basic framework. Okay, so in this way only we will discuss about this Somavanshi dynasty as well. So first we will discuss about introduction. So in introduction कौन लिखिए आपण माने कि फाउंडर किए थे, who was the founder of this Somavanshi dynasty. Okay, so it's a bit I will say, so original founder was actually Udayan. I know many of you would be surprised about this, but the real founder किए थे उदयन थे. रियल फाउंडर तो कही पारे नहीं, बट फाउंडर, जस्ट फाउंडर, बट रियल फाउंडर आफ्टर उदयन and Tiwardeva Udayan actually laid the foundation of this dynasty, and after that real founder we can say was Janmejayavan and Jajativan. Janmejayavan and Yayativan, they are the real founder. So in the introduction you have to write the founder's name and then time period. तांकर एक्चुअली जो रूल थिला 9th सेंचुरी रू 12th सेंचुरी कॉमन एरा जाई तांके एक्चुअली रूल करिथिले. एप्रोक्सीमेटली वी कैन से तांकर जो रूल थिला 200 इयर्स रो रूलटा रहिथिला. ओके, एंड तांके जो रूल करुथिले से जगार टोटल जदि देखिबा तांके टिके भौमकरस डायनेस्टी रू टिके पुणी एक्स्ट्रा एक्सटेंशन कंसोलिडेशन करिथिले रीजन को, जेमती है ओद्रा देश, उत्कल देश, कंगड़ देश एंड कोसल देश. सो दिज आर द बेसिक आउ कलिंग देश. ये सब जगार से एक्चुअली
टोटल रूल करूले आउ से भल तांकर जो स्टेबल गवर्नमेंट गोटे यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन जमी हेबा कथा से हिसाब से करेंगे कल्चर रे बहुत गुड़ाए तांकर योगदान अच्छी द आर्किटेक्चर और द इंफ्रास्ट्रक्चर टेम्पल आर्किटेक्चर भी स्टार्ट हो टाइम रे सो मेनली इंपोर्टेंट जिन इंट्रोडक्शन आप लिखिपारे कि ये टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट भी हेबो और बहुत बढ़िया मैग्निफिसेंट टेम्पल जाक ये तैयारी हेबो और आंकर टाइम रे पीसफुल गवर्नमेंट चली पीसफुली सब रूल करले तो एतिकी दुई तीन टा लाइन रे चार पांचटा लाइन रे आपन को तार इंट्रोडक्शन देबार अछि द फाउंडर नेम तांके केते टाइम पीरियड तांकर लिखिबे को जगह रे रूल करूथिले मेनली तांके टेम्पल आर्किटेक्चर आउ पीस पीस मेंटेन करिथिले पीस एंड ट्रैंक्विलिटी वाज प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द सोमवंशी डायनेस्टी सो बेसिकली इंट्रोडक्शन रे एते इंट्रोडक्शन लिखिला परे सो बैकग्राउंड पर कहि फास्ट हम बुझी देबा सोर्स कोन को हमको जोड़ा केमती पडुची कौन कहले फर्स्ट पेज द फाउंडर वाज एक्चुअली उदयन बट रियल फाउंडर इज जन्मजय वन एंड जयति वन ओके सो सोर्सेस आमे कोठू जानिबा को मिलिला सोमवंशी डायनेस्टी विषय तो देयर आर सो मेनी sources mainly inscriptional sources are there जेंती बंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन आउ इटा एक्चुअली महाशिव गुप्त विषय ये बहुत जिन जाना मिलছে नॉट इम्पोर्टेंट जस्ट यहाँ ही लिखु बंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन अधावर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन अधावरो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन पटना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन कलंजर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन तो बेसिकली इंस्क्रिप्शन जाक बहुत मिलूँ लिटरेरी सोर्सेस एते मिलू नहीं रेकॉर्ड जाक एते मिलू नहीं बट इंस्क्रिप्शन किछटा मिलूँ आउ से मानकर जदि आमे डिस्कस करबा टाइम पीरियड रे हले जो 9th सेंचुरी कॉमन एरा रू 12th सेंचुरी कॉमन एरा रे सेतबेले जदि पॉलिटिकल हिस्ट्री देखिबे इंडिया रो सो सेतबेले एई जगह रे बेंगाल वाला रीजन रे पाल डायनेस्टी रूल करथले पाला डायनेस्टी आ एठी राष्ट्रकूट डायनेस्टी रूल करथले महाराष्ट्र वाला रीजन मान्यखेड़ तांकर एक्चुअली टाइटल थिला राष्ट्रकूट ये पाला डायनेस्टी ये राष्ट्रकूट आउ ये पुष्यभूतिस माने रूल करथले पंजाब हरियाणा वाला रीजन रे पुष्यभूति डायनेस्टी आउ यही मझे चंडेल डायनेस्टी भी रूल करथले सो किछि किछि राजपूत रूलर्स माने भी रूल करबे स्टार्ट कर दिले से टाइम रे गुर्जर प्रतिहार चक्र टिके डिमाइस हो जाइतला राष्ट्रकूट आउ पाल थिले उसी टाइम रे एठी इटा होची हमर मेनली कलिंग माने हमर सेतबेले सोमवंशी डायनेस्टी रूल करथिले टोटल कलिंग तो इटा लिखिबे नहीं ओके एज ए होल आपको सेट करिकी सोमवंशी डायनेस्टी रो एडमिनिस्ट्रेशन बा एरिया जेटा कहि परिबे अब ये इंपीरियल चोलास माने एक्चुअली रूल करते इंपीरियल चोलास माने रूल करते सो नाउ कम टू बैकग्राउंड बैकग्राउंड कौन है लिखा दरकार नहीं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग सो आमे देखी भौमकर डायनेस्टी रे वुमेन रूलर्स माने एक्चुअली रूलिंग करिया स्टार्ट कर देथिले आ धीरे धीरे वीक सक्सेसर रूलर्स माने जेतोले आसीबे से माने एते भलसे एडमिनिस्ट्रेशन करि परिबे नै आउ तांकर ही फ्यूडेटरीज माने कंटेम्परेरी कहि परिबा हमें कंटेम्परेरी रे ई हमरो सोमवंशी डायनेस्टी रो किछटा रूलर्स माने डिफरेंट रीजन रे कौशल रे आउ अलग अलग जगह रे तांके रूल करथबे आउ धीरे धीरे एटेक जगह करी की तापरे टोटल एरिया को निज अंडर रे कलिंग को कैप्चर करिए धीरे धीरे सो sources to last
कौन कहले सोर्सेस ର ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଟିକେ କହିବେ। कलंजरा कलंजरा KALANJRA कलंजरा कलंजरा स्टोन इंस्क्रिप्शन. Is that clear? Yes. So the thing is that early history समवंशी जब देखिए तांके 7th सेंचुरी रे ही एक्चुअली तांके रायपुर सिरपुर कैपिटल करिकी तांके रूल करूथे हमर समवंशी डायनेस्टी. रायपुर मध्य प्रदेश संबलपुर कलाहांडी यही सब जगार एक्चुअली 7th सेंचुरी रे ही तांकर एक्चुअली धीरे धीरे स्टार्ट हो जाइतला. और सीटा एक्चुअली स्टार्ट किए करितला मेनली उदयन एक्चुअली स्टार्ट करिथिले. आउ तांकर कंटेम्परेरी तिवार देव गुटे थिले. आउ तांके भी मोस्ट पावरफुल आम कहले चले बिकज से जो राष्ट्रकूटस माने आउ कलाचुरीस माने अटैक करेंगे राष्ट्रकूटस आउ कलाचुरीस अटैक करेंगे से तिवार देव थे जी कि एक्चुअली जो इनवेजन होता राष्ट्रकूट आउ कालचुरीस अटैक 9th सेंचुरी से तिवार देव ही प्रोटेक्शन देते आउ तिवार देव ही एक्चुअली ईस्ट वार्ड एक्सपांशन करेंगे तांके बिकज ऑफ ओडिशार वेस्ट एक्चुअली तांके प्राय रायपुर वाला रीजन रे रायपुर मध्य प्रदेश वाला रीजन रे रूल करते ईस्ट वार्ड एक्सपांशन भी तिवार देव ही करेंगे. बट रियल फाउंडर जदि आमे देखिबा धीरे धीरे तांकर तिवार देव कोन हमर सोमवंशी रे रूलर थिले. हाँ उदयन वाज अ फाउंडर रियल फाउंडर माने रियल तो नहीं स्टार्टिंग जे करिथिले जो नीव फाउंडेशन जे रखिथिले. बट तापरे तिवार देव टिके मोस्ट तांकर ही वंशज तो कहि परिबे नै उदयन रो बट तांके भी गोटे राजा थिले इन दिस सोमवंशी डायनेस्टी जस्ट स्टार्ट होची. इट वाज नॉट कंप्लीटली स्टार्टेड. ओके जस्ट स्टार्ट होला बेलकू आ गोटे राजा भी थिले सेते बेले कंटेम्परेरी रूलर कहि परिबे हमें उदयन रो तिवार देव. से तिवार देव बहुत पावरफुल राजा थिले आ तांके राष्ट्रकूट आ कलाचुरीस मानकर जो अटैक हेबो सेते तिवार देव ही एक्चुअली डिफेंड करिथिबे ओडिसा को इन द 9th सेंचुरी आउ पुणी ईस्ट वार्ड एक्सपांशन भी करेंगे तिवार देव. आउ तिवार देवर वंशज होउचंती हमर जन्मजयवान. इज दैट क्लियर? सर तिवार देव तो आउ गोटे डायनेस्टी रो राजा थिले ना छेरो डायनेस्टी कोइ की. को डायनेस्टी? छेरो डायनेस्टी कोइ की तिवार देव थिले ना तो सेतबेले माने यांको संगे तांको डायनेस्टी भी चालुतला से 12th सेंचुरी रे का तिवार देवर. हाँ तो मु तो सेटा ही कहली आपन को उदयन रो कंटेम्परेरीज थिले एक्चुअली तिवार देव से टाइम रे एग्जैक्टली सोमवंशी डायनेस्टी बोधे स्टार्ट भी ही नथिले से टाइम रे. इट वाज जस्ट द बिगिनिंग. ओके यार जहाँ भी कंट्रोवर्सी अच्छी पर यहाँ देखा बट नॉट इम्पोर्टेंट. मेनली फाउंडर थिले जन्मजयवान एंड ययातिवान. दे आर द रियल फाउंडर्स जे कि तापर स्टार्ट करेंगे. सो इन फ्लोचार्ट ये गोटे फ्लोचार्ट आप मेंशन करेंगे जो फ्लोचार्ट आम कर सिग्निफिकेंस बा कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डायनेस्टी और किंबा कंट्रीब्यूशन रे देयर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस देयर मिलिटरी सिग्निफिकेंस cultural significance social significance बैकग्राउंड इवोल्यूशन नॉट इम्पोर्टेंट. ओके सो जदि किछटा लगुच असुविधा ताको स्किप भी कर. बैकग्राउंड इज नॉट इम्पोर्टेंट जस्ट बिगिनिंग जिनस जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग बैकग्राउंड पे कहूली मु. ओके ताको न लिखले भी चलो किसी असुविधा नहीं. डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन आसो इंट्रोडक्शन पर डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन आ पॉलिटिकल मैप देखिए आप लिखिपारे. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस.
तो फास्ट वी विल इम्पोर्टेंट राजा मैंने जी थे तांको विषय टिके टिके देखिए आम जन्मजय वन तांकर ओरिजिनल ना थिला महाभावगुप्त। So you can say the real founder, the first ruler of this Somavanshi dynasty, Janmejaya one, the real ruler। ଆଉ ଆଙ୍କେ ବହୁତ କନସୋଲିଡେସନ୍ କରିଥିଲେ। କନସୋଲିଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଏମ୍ପାୟାର କରିଥିଲେ। आंके कैप्चर कले उत्कल को कैप्चर कले। बौद्ध फुलबाणी सब रीजन रे रूल करथिले। he also subdued माने तांकर अटैक जेतले कलाचुरीस माने अटैक करूथिले तो सेमानंकु भी डिफेंड करिथिले बा लड़ीथिले सेमानंक सहित और निज को बहुत बड़ बड़ टाइटल दूथिले। he given himself big titles to himself, for example Parameswara, Paramabhatraka, परमेश्वर, परमभद्रक, त्रिकलिंगाधिपति, परमेश्वर, परमभद्रक, त्रिकलिंगाधिपति। सो नेक्स्ट रूलर आसुचंती ययाति, इंपोर्टेंट रूलर ययाति वन। तांकर ना थिला महाशिवगुप्त। महाशिवगुप्त एंड तांके फर्दर एक्सपांशन कले, कंसोलिडेशन एंड एक्सपांशन। तांके निजर गोटे ना रे ययातिगिरी गोटे तैयारी कले, ययातिगिरी आउ कैपिटल को ट्रांसफर कर देबे फ्रॉम दैट जाजपुर जो गुहदेव पोताका थिला, जो कैपिटल थिला हमरो भौमकर डायनेस्टी रो, सी कैपिटल को चेंज करिकी जाजपुर रो जजातिगिरी कर देबे। तो ट्रांसफर कैपिटल ट्रांसफर करिथिबे। he also fought with कलाचुरीस, ये भी फाइटिंग करथिले कलाचुरी सहित, रेजिस्ट करथिले अटैक्स जाक। तापर नेक्स्ट भीमरथ आसे, भीमरथ राजा। भीमरथ को देवराज इंद्र भी कहा जाउथिला। he was also very valerious and courageous ruler, we can say, and religious too। आंके religious भी थिले, ठीक है, courageous भी थिले, tolerant भी थिले। tolerant king we can say। तांको टाइम रे different type of religious sector development भी देखा जीवो। एंड भीमरथ पर भी बहुत गुड़ाए राजा अच्छा, धर्मरथ, इंद्ररथ। आम
डायरेक्टली बहुत राजा और देखिए नहीं सीधा लास्ट रूलर विषय देखिए। तो लास्ट रूलर थे कर्णदेव। कर्णदेव in the 12th century we can say this he was the last ruler of Somavanshi dynasty. कर्णदेव KARNADEVA कर्णदेव तांके अप टू बालासोर पर्यंत पूरा कैप्चर करिथिबे आ रूलिंग करुथिबे। ଆଉ ଆଙ୍କେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ରୁଲ୍ କରୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ଚୋଡ଼ ଗଙ୍ଗଦେବ attack of imperial Gangas we can say attack of Chod Gangadeva अनंतवर्मन चोड़ गंगादेव अटैक करेंगे आउ तापरे सोमवंशी डायनेस्टी रो डिमाइज भी हो आफ्टर 200 और 200 इयर्स आई कैन से 250 इयर्स भी हो पाएगा और इंपीरियल गंगास डायनेस्टी स्टार्ट हो। सो दिस वाज द पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। तो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस रे आपण लिखिबे इंपोर्टेंट रूलर्स मानकर ना तांकर किछिटा कंट्रीब्यूशन तांके को एरिया रे रूल करथुले सब जिंस लिखिबे। देन नाउ कम्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस। The administrative significance we can write तांके एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस प्राय सबू जिते भी डायनेस्टी अच्छी प्राय कॉमन पॉइंट्स जाक रही। तो समस्त पॉइंट आप लिखिपारे दे आर एक्चुअली डूइंग द एडमिनिस्ट्रेशन वाज सो इफिशिएंट। तो इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन वाज देयर। कैपिटल को पुणी शिफ्ट भी करी कैपिटल शिफ्ट करी कैपिटल शिफ्ट करी पीस ट्रांक्विलिटी वाज प्रिवेलिंग स्टेबल गवर्नमेंट तांके गुटे तैयारी करथिले। सबू ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी पई चार्टर इश्यू करा जाउथला। दे आर इश्यूइंग द चार्टर्स एंड सबू जिंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा जाउथला पीपल्स को। और मेनली जो एडमिनिस्ट्रेशन चली था हेरिडिटरी मोनार्की चलती एक्चुअली। हेरिडिटरी मोनार्की राजार पु ही राजा एक्चुअली हेबे और तांके एक्चुअली मेन अथॉरिटी आउ सी राजा जो रूल करेंगे तांकर मिनिस्टर्स जाक हेल्प रे से मिनिस्टर्स मानकर ऑफिसर्स माने थिबे। ऑफिसर्स मानकर ना किछटा मन रखंतु इनती चीफ मिनिस्टर को मंत्री तिलक कहा जाता। मंत्री तिलक मिनिस्टर ऑफ वार एंड पीस मिनिस्टर ऑफ वार एंड पीस को महासंधि विग्रहिका महासंधि विग्रहिका कहा जाता। मिनिस्टर को इवन कमांडर इन चीफ को महासेनापति कहा जाता। तो सोमवंशी डायनेस्टी सब महा लगे। डिफरेंट मिनिस्टर्स जाक अच्छा रणक राज्यपुत्र भत्रास छत्रास महाक्षप्तलिका आम 2-4 ना जाक मन रखिया। और डिफरेंट ऑफिसर्स थे यू कैन राइट रणक भतास दुई चार्टा ना मेंशन करेंगे सब इम्पोर्टेंट नहीं 3-4-5 ना मैक्सिमम जो डाटा क्लाइमेट डिस्ट्रिक्ट विलेज ब्लॉक तहसील एमपी यूनिट अछि ताके सेमति जागा को रीजन को। सो रीजन वाज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू मंडल then mandala was divided into bhukti then bhoga then khanda then grama. So
मंडल भुक्ति भोग खंड ग्राम। मंडल भुक्ति भोग खंड and lowerly unit was ग्राम। सो ये हिसाब रे एक्चुअली डिवाइड होता जगह को डिवाइड करते आर मिलिटरी रे इन्फेंट्री कैवेलरी फुट सोल्जर घोड़ा एलिफेंट्री सब टाइप ऑफ आर्मी रे इन्फेंट्री कैवेलरी एलिफेंट्री आर्मी रे सब सैन्य माने बहुत थे। So next we will discuss about cultural significance. कल्चरल सिग्निफिकेन्स एक्चुअली बहुत थिला से मानकर स्पेशलिटी कहि परिबे यूनिकनेस कहि परिबे अंक टाइम रे वैष्णविज्म जेतु राजा माने टॉलरेंट थिले सो वैष्णविज्म एज वेल एज शैविज्म एज वेल एज बुद्धिज्म सब फ्लोरिशिंग होउथिला कोएक्सिस्ट हेकि रहउथिले। So they were राजा क्वाइट इटा दिस शोज दैट राजा जो थिले बहुत ही रिलीजियस टॉलरेंस थिले और सेक्युलर इन कैरेक्टर। इवन से ब्राह्मण मानकर पोजिशन टी बहुत अधिक रखुले ब्राह्मण मान को लैंड दि जाउतला ब्राह्मण को लैंड बेसी दि जाउतला और पूजा सैक्रिफाइस हवन यज्ञ ये सब जिन करा जाउतला। सबुठ इम्पोर्टेंट होउची आर्किटेक्चर डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्ट ये देखिया पे मिलिबो बहुत गुड़ाए टेम्पल जाक बिल्डिंग हेबो टेम्पल रो क्लाइमेक्स भी कहि परिबे क्लाइमेक्स तो नहीं बट कलिंग स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो डेवलपमेंट हितला कलिंग स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हेबो and we will discuss about this Kalinga style of temple architecture in the architecture session. What is specific topic अछि आपनकर so Kalinga style of temple architecture आउ सिटी किछि एग्जांपल दी परबे गोटे सोमेश्वर टेम्पल हेतिला सोमेश्वर टेम्पल रानीपुर रे जन्मजय वन एक्चुअली तैयारी करथिले ताकू जन्मजय वन देन मुक्तेश्वर टेम्पल वाज बिल्ड बाय ययाति वन and even Lingaraj temple also Lingaraj temple Yayati too actually करथिले Lingaraj temple so many temples building और magnificent temples sculpture sculpture जाको भी जो देखिए बहुत ही lavishly carved magnificent phenomenal temples as well as sculpture architecture आपको देखिया पे मिलियो। Even this dynasty also patronized many scholars. It patronized many scholars and intellectuals. For example, Purushottama भट्ट साधारण then भावदेव तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स स्कॉलर्स मान को पेट्रोनाइज करूथिले
जो मैंने संस्कृत लिटरेचर रो भी तो प्रमोशन ऑफ संस्कृत लिटरेचर भी हेबो ए टाइम रे सो प्रमोशन ऑफ संस्कृत लिटरेचर एज वेल एज स्कॉलर्स सो ए टाइम रे वेदांगस वेद डेवलपमेंट हेबो वेदांग डेवलपमेंट हेबो कमेंटेरीज स्मृति पुराण ये सब डिफरेंट सब जिनस डेवलपमेंट हेबो इवन आल्सो डेवलपमेंट ऑफ साइंस एस्ट्रोनॉमी ये सब ग्रामर पोएट्री हिस्ट्री ओडियार लैंग्वेज ओडियार इवोल्यूशन संस्कृत लैंग्वेज लिटरेचर ये सब जिनस डेवलपमेंट देखिए पाइबे सो कल्चरली जमती एक्चुअली गुप्ता डायनेस्टी वाज मच इंपोर्टेंट द गोल्डन पीरियड वी कैन से गुप्ता डायनेस्टी फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव सो ओडिशार पर्सपेक्टिव रे सोमवंशी डायनेस्टी को आम गोल्डन पीरियड भी कह पाइबे बिकॉज ऑफ दिस कल्चरल सिग्निफिकेंस so now social significance so social significance रे एठी जेमिति चलीथिला एक्चुअली भौमकर सेमिति ही चलियो वर्ण आश्रम जो चलथिला ब्राह्मण क्षत्रिय चतुर्वर्ण सिस्टम जो थिला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूत्र से टाइप ऑफ सोसाइटी रे जिनस चलीथिला आउ जिनसटा कौन हेबो मेनली इथे वुमेन्स रो कंडीशन बहुत भल रहउथिला इन द भौमकर डायनेस्टी एठी धीरे धीरे तांकर स्टेटसटा टिके कमी जीवो आउ एठी देवदासी सिस्टम बिकज टेम्पल बहुत गुड़ा हेबो सो देवदासी प्रथा स्टार्ट हो टेम्पल डांसिंग प्रोस्टिट्यूशन स्टार्ट हो प्रोस्टिट्यूशन देवदासी सो लिटिल बिट कंडीशन डिटोरिएट हो टिके कंडीशन कम माने वुमेन्स रो स्टेटस टिके कम हो बिकज ऑफ दिस प्रथा जाक बाकी से मानकर भी डांसिंग करि पारुथले सिंगिंग करि पारुथले किछिटा वर्गर झील मैंने थे जी कि इवेन टेम्पल कंस्ट्रक्शन करूले डांसिंग सिंगिंग म्यूजिक सब शिखि पारुथले तांके राजा महाराजा मानकर झील मैंने सो सब ठीक थिला बाकी धीरे धीरे प्रोस्टिट्यूशन देवदासी टेम्पल डांसिंग भी स्टार्ट हो जाइतिला बाकी ठीक थिला तो सोसाइटी रे एटा ही आउ ब्राह्मणस मानकर एक्चुअली बहुत ही स्टेटसटा बहुत हाई 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 थिला तांके यज्ञ करुले लैंड ग्रांट दि जाऊला रेस्पेक्ट भी दि जाऊला समाज रे बहुत सो मेनली दिस काइंड ऑफ सोशल सोसाइटी रे से जिनस सब चलथिला और बाकी कॉमन पॉइंट्स जाक जो थिबो हमरो समवंशी भौमकर ताको लिखि परिबे सो नाउ कम्स टू कंक्लूजन वर्ण सिस्टम रे मेंशन हो नहीं कौन कहले वर्ण सिस्टम जो चारटा वर्ण हां बरा सिग्निफिकेंस है हां वर्ण सिस्टम टा मेंशन करिवे फर्स्ट पॉइंट तो वर्ण सिस्टम लिखा ही बरा so now comes to conclusion so in the conclusion you can write it was a very watershed movement in the Indian Odisha history you can say and तांकर जो कल्चर रे जो सिग्निफिकेंस थिला so watershed movement in the Odisha Indian history you can also say this is the glorious age because of their culture their immense contribution in culture literature and temple architecture specially so main जो features अच्छी ताकू देकी आपण conclusion टा लिखिबे हम कहितली सो एमिति दुई चारटा लाइन लिखिकी आपण ताकू तो तारो conclusion टा देबे सो मैग्निफिसेंट टेम्पल जा कहितला टेम्पल गुड दुईटा ना भी लिख पारिबे कंक्लूजन रे also the
Kalinga style of temple architecture was developed in this age. So ये सब जिनस कहीकि द ग्लोरियस एज वाटरसेड मूवमेंट ग्रेट पॉलिटिकल एक्टिविटी ग्रेट इकोनॉमिक एक्टिविटी कल्चरल एक्टिविटी होता कनक्लूजन रे लिखि परिबा कि जो आपण जोटा कहले ओडिसा रा गोल्डन एज बोली हम एटा कहि परिबा कहि परिबे golden period in terms of literature architecture cultural significance को लेके So any doubt from the previous Somavanshi dynasty? सर मिलिटरी सिग्निफिकेंस रे खाली कोन सेंति लिख दवा कोन रे क्लावेरी फ्लेवरी कोन यूज करथि सेति कि आ किछि नै गोटे लाइन लिख दिया तो सीटा पड़े हाँ लिखिबे स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी थिला तांकर आर्मी रे इन्फेंट्री थिला कैवेलरी थिला एलिफेंट्री थिला समस्त को यूज करिके तांके पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट को करूथले जहाँ भी करथले तो मिलिटरीली तांके स्ट्रॉन्ग सेना मानकु सब रखुथिले आ तांको जो सैलरी दउथिले तांके लैंड रे सैलरी जाक दउथिले सो मिलिटरी सिग्निफिकेंस एडे लिखिबे पुनी से माने हाथी मगौथिले इवन दे वर इंपोर्टिंग different types of qualified horses and elephants from southeastern region so तांकर सेना को तांके स्ट्रॉन्ग करिया पे चाहुथिले ओके सो स्ट्रॉन्ग भी करूथिले और रखु भी थिले बाहरु किसी इन्वेजन आ अटैक न हो बोली आ गुटे 200-300 वर्ष गुटे राज्य जदि ताकू सस्टेन करिछि ता माने तांकर एक्चुअली मिलिटरी स्ट्रेंथ बहुत भलो थियो तेबे तो से सस्टेन करि पारला नहले तो सही टाइप रे सही टाइम रे बहुत गुडा सब आक्रमण अटैक होउथला इवन बेंगल रु पाला डायनेस्टी कालाचोरी डायनेस्टी डिफरेंट चोला डायनेस्टी इंपीरियल चोलास माने भी केबे केबे आसीबे तो सी अटैक कला वाला को राजा मानो पाखे जो मिलिटरी स्ट्रेंथ थिला सब ता पे ही तांके एक्चुअली निजको सस्टेन भी करि पारले आ डिफेंड भी करि पारले निजर देश माने कलिंग देश को ओके सो नेक्स्ट इंपीरियल गंगास और इंपीरियल गंगास टू इवन हिस्ट्री ऑप्शनल पिला मानकर क्वेश्चन बहुत थर आसी इंपीरियल गंगास रो क्वेश्चन टा 2014 रु जदी ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन पेपर अप टू 2022 जाई आपण निजे एनालाइज करिवे तो एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स इंपीरियल गंगास विषय क्वेश्चन आसी रिपीटेड सेम क्वेश्चन एटा ही रोची कि ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ इंपीरियल गंगास विथ स्पेशल रेफरेंस टू ओडिशा और द व्हाई इंपीरियल गंगास इज सेड टू बी द ग्लोरियस रूल ऑफ ओडिशा हिस्ट्री तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन और व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ इंपीरियल गंगास मैंने क्वेश्चन डायरेक्टली टॉपिक को नहीं कि टिके बुले कि नहीं जस्ट क्वेश्चन डिमांड गोटे ही अच्छी कहबार ढंग अलग अच्छे सो बहुत इंपोर्टेंट मुझे कहि इंपीरियल गंगास बिकज जिते भी डायनेस्टी थिला इंपीरियल गंगा डायनेस्टी रो कंट्रीब्यूशन टा ओपीएससी को बहुत भल लगे बारंबार से क्वेश्चन पचारे और प्लस तांकर सिग्निफिकेंस अच्छी भी सो आपको देखा चेष्टा करिया बट रेस्ट्रिक्टेड टू आवर टॉपिक सो सी सेम फ्रेमवर्क ही डिस्कशन हेबो सो फर्स्ट वी विल राइट द इंट्रोडक्शन ओके द इंट्रोडक्शन रे लिखिबे कि द इंपीरियल गंगा डायनेस्टी was really said to be the glorious age of Odisha history. Also we can say it is the watershed moment in the Odisha history. We can also say it is an era of ferocious battle. It is the era of ferocious battle, political activity,
sound administration system, sound administration, and significant cultural activity or cultural achievements. So it is the era of ferocious battles, conquest, political activity, sound administration and significant cultural achievement. So एमिति देकी आपण गुटे कोन करि परिबे तार इंट्रोडक्शन दे परिबे आउ इवन यू कैन आल्सो राइट द फाउंडर्स नेम द टाइम पीरियड से जिनस भी लिख परिबे टाइम पीरियड जदि देखिबे सो इन द 498 AD रे एक्चुअली यू कैन से तांकर अस्तित्व एपियर्ड तो एक्चुअली एपियर्ड आउ से धीरे धीरे किछिटा जगह रे रूल करूथिले धीरे धीरे किछिटा जगह रे रूल करूथिले इनिशियल राजा माने आसिले और बहुत गुड़ाए वार है बहुत गुड़ाए स्ट्रगल कले और करी 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 इन 940 AD रे दे राइज टू प्रोमिनेंस आउ पूरा लाइमलाइट रे आसिले पूरा ओडिशा रे तांकर दबदबा रहला और तांके कंट्रोल कले इन 940 AD जेतळे चोड़ गंगे देव ताकू पूरा लाइमलाइट आनले एंड देन देयर ग्लोरियस रूल एक्चुअली स्टार्टेड वी कैन से ग्लोरियस रूल तापर ही एक्चुअली from the 10th century glorious rule was there up till the 15th century 15th century up to 1435 I will say 1435 जाई एक्चुअली तांके सस्टेन कले सो ऑलमोस्ट 5टा सेंचुरी 500 वर्ष जाई तांकर एक्चुअली रूल देखिया पे मिली छि आउ ग्लोरियस रूल ताको ही कहंती फ्रॉम द 10th century to 15th century आउ तापरे 1435 पर तांकर डिक्लाइन हेबाटे स्टार्ट हेबा पुणी गजपति डायनेस्टी सूर्यवंशी जो गजपति डायनेस्टी अछि तापरे से माने तापरे ऑक्युपाई करिवे सो दिस ने बहुत अधिक समय तांके एक्चुअली रूल करिथिले आउ गोल्डन आकु भी गोल्डन पीरियड कहि परिया बट स्टार्टिंग करिथिले हमर सबवंशी डायनेस्टी रे बहुत गुडा टेंपल आर्किटेक्चर रो क्लाइमेक्स देखिया पे मिलिथिला लिंगराज टेंपल आउ सोमेश्वर टेंपल आउ मुक्तेश्वर टेंपल बहुत गुड़ाए टेंपल जाक होता यही एज रे भी टेंपल जाक हेब कोणार्क मंदिर आमर पुरी जगन्नाथ मंदिर भी तैयारी हेब तो यहाँ भी बहुत बहुत इंपोर्टेंट फ्रॉम कल्चरल एस्पेक्ट आउ कंट्रीब्यूशन रही डेफिनेटली सो आपको भी आम ग्लोरियस एज आउ बोली ताकू कहूचु ग्लोरियस एज बिकज ये एडमिनिस्ट्रेशन भी साउंड एडमिनिस्ट्रेशन थिला एडमिनिस्ट्रेशन बहुत भल भाव करते आ गोटे लंबा पीरियड जाए निज को सस्टेन कर सो एठी जदि पॉलिटिकल मैप को जदि हम देखिबा तांकर से टाइम रे सो ए टाइम रे पॉलिटिकल सिनेरियो थिला कोन सो एटा पूरा ई एरिया पूरा ईस्टर्न गंगास रो नारे जाने दउतला ईस्टर्न गंगा तांके फर्दर कंसोलिडेशन करिवे ईस्टर्न गंगास बा इंपीरियल गंगास कहि परिवे सो ये पाखे कलिंग बोली लिखिपारे ये जगार कलिंग कलिंग से गोटे छोट एरिया को कहते आउ ये राजस्थान वाला एरिया राजपूत स्टेट गोटे राजपूत स्टेट राजस्थान वाला रीजन रे राजपूत स्टेट बोलता एंड ये हौसाला हौसालास मैंने एक्चुअली रूल करते आ पूरा बाकी जेते एरिया रहा आपणकर जेते एरिया रहा इवन श्रीलंका रो भी किछिटा रीजन रे जेते एरिया बढ़ीगला रहीगला दैट वाज अंडर द दिल्ली सल्तनत दिल्ली सुल्तान्स और दिल्ली सल्तनत इसमें ऑडियो इज विजिबल am I audible to all of you and visible no sound issue or visual issue Yes, sir.
So this was basically the political history or the political map of that period in the I can say 10th to 11th century ର ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଥିଲା ବା 12-13 century ବି କହିପାରିବେ। So as ଯେମିତି framework କହିଥିଲି ଆମେ introduction ପରେ ତାର political map ତାର ଟିକେ sources background और सेमती ही आमे चलिबा। सो वी विल डिस्कस अबाउट द सोर्सेस। एमानकर बहुत गुड़ाई सोर्सेस अच्छे ओके। इवन से टाइम रे मेगास्थेनिस आसथिले तो इंडिका ऑफ मेगास्थेनिस सो दैट वाज आल्सो ए सोर्स। आउ तांके डिस्क्राइब करिसंती कि पूरा ईस्ट रे बेंगल रो जस्ट तळे सिटी जो गंगा नदी रो कोस्ट माने एरिया रे बा तट रे गोटे ट्राइब रोले से ट्राइब रो ना थिला गंगावरी ट्राइब। गंगावरी ट्राइब गंगारीवाइडाई ट्राइब ओके। So this tribe was actually residing in the river Ganga, beside of river Ganga actually ये ट्राइब टा रोले गंगावरीडाई ट्राइब बोले एमती मेगास्थेनिस रो इंडिका रे लिखा है। इवन से टाइम रे प्लिनी स्ट्राबो ये सब जो रोमन एम्पायर रो अथर्स माने से माने जो आसी थिले ता प्लिनी भी कहले कि साउथ ऑफ वंशधारा रिवर वंशधारा जो नदी अच्छी से वंशधारा नदी रो साउथ रे गोटे ट्राइबल्स माने रोले आउ से ट्राइबल्स माने ही इंपीरियल गंगा तापर धीरे धीरे निजको ट्रांसफॉर्म कले। इवन मादड़ा पांजी इज आल्सो ए ग्रेट सोर्स। मादड़ा पांजी ताइरे भी एक्चुअली बहुत गुड़ाए पॉलिटिकल हिस्ट्री इवन इनस्क्रिप्शनल सोर्सेस भी अच्छे। इनस्क्रिप्शनल सोर्सेस जोटा कि जमीन कि आप जगन्नाथ टेम्पल इनस्क्रिप्शन जाक मिली आमर जगन्नाथ टेम्पल डेफिनेटली आप सब जाइए बहुत गुड़ा इनस्क्रिप्शन जाक देखिए मिले। सो जगन्नाथ टेम्पल इंस्क्रिप्शन नगरी प्लेट इंस्क्रिप्शन नगरी NAGARI नगरी प्लेट इंस्क्रिप्शन भी देखिए पे मिलती और बहुत गुड़ा इंस्क्रिप्शन अच्छी। केंदुली प्लेट इंस्क्रिप्शन लिंगराज टेम्पल इंस्क्रिप्शन कोणार्क टेम्पल इंस्क्रिप्शन। सो जस्ट बेसिकली 2-3टा आमको नाम मन रखार अच्छे। सो दीज आर द सोर्सेस जो एक्चुअली जाना पे मिलूँ से कंट्रीब्यूशन कौन था हिस्ट्री रे और तांकर हिस्ट्री विषय एक्चुअली हमको जाना पे मिलूँ। सो देन अगेन से फ्लो चार्ट रे आपण कंट्रीब्यूशन फ्लो चार्ट बने पारिबे एंड देयर वी कैन राइट देयर सिग्निफिकेंस और कंट्रीब्यूशन इन पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस एमती गोटे आपण बने पारिबे। से अर्लियर जोड़ा एक्चुअली आम करूँ सोशल सिग्निफिकेंस कल्चरल सिग्निफिकेंस डिफरेंट सिग्निफिकेंस जाकर फ्लो चार्ट आप तैयारी करेंगे। एंड नाउ आई विल जस्ट जंप टू इंपीरियल गंगा पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस रे इंपोर्टेंट राजा मान को देखिए। राजा बहुत थे एक्चुअली अनंत वर्मन वज्रहस्त रु स्टार्ट है कि भानुदेवचारी और जो तो देखिए जदि राजा एटलिस्ट 15टा खंडे राजा मिल जाए आपको 15-16टा खंडे राजा मिले और समस्त ना भी मन रखाटा कष्ट। आम इंपोर्टेंट जे राजा अच्छा विषय चेष्टा करिया पढ़ापी। स्टार्टिंग करथिले अनंत वर्मन वज्रहस्त। अनंत वर्मन वज्रहस्त एक्चुअली स्टार्ट करेंगे और आंके जो स्टार्ट करेंगे जो 1038 रु 1070 AD जाए छोट छोट एरिया रे तांकर रीजनल एरिया रे तांके रूल करेंगे। तापरे देवेंद्र वर्मन राजा राजदेव आसवे आउ अनंत वर्मन वज्रहस्तर नाती ने पुओर पुओ होती अनंत वर्मन चोड़गंग देव एंड वेरी वेरी इंपोर्टेंट आउ तांको विषय टिके आम भलसे पढ़ा।
अनंतवर्मन चोडगंगादेव. So अनंतवर्मन चोडगंगादेव ତାଙ୍କର ରୁଲ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି 1077 AD ରୁ 1000 so ତାଙ୍କେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଡିମାଇସ୍ ହେଇଥିଲା. ସୋ ନଟ୍ ରୁଲିଂ ପିରିୟଡ଼ ବଟ୍ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାନେ ତାଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର 1077ରୁ 1147 ଯାଇ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ. ସୋ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରିବେ? ହି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ रिलेशनशिप विथ बेंगाल जो पाला डायनेस्टी रूल करुवे ये पाला डायनेस्टी सब प्राय अटैक करती. सो ये पाला डायनेस्टी तांके रिलेशनशिप जाक मेंटेन करेंगे पर्सनल लेवल रे रिलेशनशिप आउ डिप्लोमेटिकली तांके रिलेशन जाक को भल करने चेष्टा करेंगे. ही वाज आल्सो ए वेरी लिबरल एंड बेनोवलेंट रूलर. A very liberal and benevolent ruler. He was also a great patron of art and architecture. Even these 2 points are common to every raja. जे भी भल राजा थिबो ये दुटा पॉइंट लिखि परिबे आपण. से माने रिलीजियस टॉलरेंस थिबे, लिबरल थिबे, बेनोवलेंट थिबे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को पेट्रोनाइज करुवे. इवन दीज आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड किंग. इवन अशोकरू नहीं कि अकबर पर्यंत जो भी भल राजा थिबे तांकर जेतेबेले भी वर्णना करिवे ई सब पॉइंट जाक लिखि परिबे. ही आल्सो हैड वार विथ चोलास, इंपीरियल चोलास माने सेतेबेले जो थिबे तांकर वंशज माने चोला डायनेस्टी रो. सो विथ दिस इंपीरियल चोलास जे कि वेंगी जगारू से अटैक करने सहित युद्ध भी करेंगे अनंतवर्मन चोडगंगादेव. He also started the construction of Jagannath temple, श्री मंदिर और जगन्नाथ टेम्पल. जगन्नाथ टेम्पल किछिटा फोर्ट भी तैयारी करेंगे तांको पीरियड रे. And he also promoted Odia language, literature, Sanskrit as well as Telugu language. आंको टाइम रे आंध्र प्रदेश वाला रीजन भी टिके लगी जाइतला. सो ही आल्सो एक्चुअली प्रमोटेड द तेलुगु लैंग्वेज, ओडिया तेलुगु लिटरेचर डेवलप हेले सेतबेले. So this is the important contribution of अनंतवर्मन चोडगंगादेव. नाउ इम्पोर्टेंट राजा गोटे देखिए आम तांकर ना थिला अनंग भीमदेव. अनंग भीमदेव 3 अनंग भीमदेव 3 very important raja. He was also very great administrator, जे कि स्टेबल गवर्नमेंट और स्टेबल पीस आनी पारी थिले. बहुत गुड़ा डिस्टर्बेंस देखा मिले मझे बट तांके स्टेबिलिटी आनिबे. एंड ही वाज वेरी डिप्लोमेटिकली साउंड डिप्लोमेटिकली प्रिंसिपल्स यूज करिकी तांके डिफरेंट साइड रे जो दुश्मन जाक हो जाइए से दुश्मन मानू से एनिमी मानू निज आड़ को आणवे. And he also transferred the capital from Kalinga to Cuttack. He also transferred the capital from Kalinga to Cuttack.
He was also a great patron of art and architecture. Great patron of art architecture, and he completed the Jagannath temple. Starting କରିଥିଲେ ଆମର ଅନନ୍ତवर्मन ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ, ବାକି पूरा finishing complete work ଟା Ananga Bhimadev III actually पूरा complete କରିବେ Jagannath temple. Even he also defended this Jagannath temple. different ସେତେବେଳେ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ଇନଭେଜନ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ତ ସେମାନେ ଆଟାକ୍ ବି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ, and it was Ananga Bhimadev III who defended this Jagannath temple, or we can say defended or protected completed Jagannath temple as well as defended from the Muslim invasion, we can say. And he also actually conquered କରିଥିଲେ ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର. He conquered Sonpur, Bolangir and Sambalpur. Even diplomatically तांके एते strong हेले कि लास्ट रे सबले जो कला चोरीस माने जो अटैक करूथिले, so he made a matrimonial alliance with Kalachuris. सर हमें जो मॉडर्न जो डिस्ट्रिक्ट ना उड़ा एम लिखते होगी कौन कहले सर जो लिखले सोनपुर बलांगीर और संबलपुर एमते मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट नेम उड़ा से समर जिंस रे लिखि हो से समय रे सब थिला. अच्छा थिला जे नाम उड़ा अलग थिला ना तो हमें ए जिंस उड़ा सोनपुर बलांगीर संबलपुर लिखि रे उड़ा लिखि परिवे किछि असुविधा रीजन्स लिखि हो. ओके मेन इंटेंशन कौन एक्चुअली एग्जाम मैंने जानवर अच्छे जे द रियल कंट्रीब्यूशन जहाँ जहाँ राजा मानकर थिला यू नो डैट एते आउ से माने भाबिबे नै कि आपण जो ना लिखि चंती से ना ऊपर से आउ एते भाबिबे नै तांके एक्चुअली देखिबे कि हां पिला पाखे नॉलेज अछि ना नै और ठीक से ऑर्गेनाइज प्रेजेंट करा है ना नै कंटेंट जो जहाँ थिला से कंटेंट से लिखि छि ना नै सेडा देखिबे. ये माइनर जिनस जाक एते से माने टाइम भी नहीं, इवन पढ़िया ही टाइम मिलबो नहीं, तो भाबिया भी एते टाइम मिलबो नहीं से मानकु. आ गोटे कथा अछि कि बेले बेले जे एग्जामिनर थाए स्पेशली इन द केस ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ले एग्जामिनर जो नॉलेज थाए एक्चुअली तांकर जो लेवल ऑफ नॉलेज तांके जदि स्पेसिफिकली गुड जिनस जानी चंती सो तांके एक्सपेक्ट करिवे कि सी पेपर रे सी जिनस खोजिया पे चेष्टा करिवे कि मु जहाँ जिनस जानी छी पिलाटा सी जिनस ही लिखि छी ना नहीं और सी जिनस को प्राय खोजिवे ले तांको जेतोले मिलिबो नहीं तांकर जिनस कि तांके जहाँ एक्सपेक्ट करूथिले आ तांके गुड जिनस जानी चंती आ पिलाटा लिखि नहीं, सो देन नेगेटिव मार्किंग सेठी खुल के मार्किंग टा एक्चुअली देखिए हुए नहीं तांके भल से मार्किंग करते नहीं. सो इट मे डिपेंड समथिंग मेन्स रे मत लगे कि टिके आपनकर डेस्टिनी बा भाग्य उपरे भी खाता किए चेकिंग करूची सेटे डिपेंड करे तांके मार्किंग केमती करंती. सो डिफरेंट टीचर्स मानकर एक्चुअली के लिबरल चेकिंग करंती के थोड़ा स्ट्रिक्ट भी चेकिंग करंती. साव ईयर गुडा माने लिखिया को पड़ियो माने इंग्लिश में पड़ी ईयर गुडा मेनली टाइम पीरियड जनरल टाइम पीरियड मन रखिए कि 10th सेंचुरी रु 15th सेंचुरी जाए से रूल थिला
एग्जैक्ट ईयर मन न रखले भी चलो किसी असुविधा नहीं. He also built 2 Shiva temple. So Ananga Bhimadev III also built 2 Shiva temple contemporary Jagannath temple. मैंने patronize मैंने it shows that actually they are very religiously tolerant as well as patronizing the intellectuals, patronizing art and culture heritage. ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନଟା ଅଛି. ଓକେ, ସୋ ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୁଲର ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଆମେ. ନରସିଂହଦେବ, ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ So Langula Nursing, they very important. We can say the imperial Gangas reached their territorial climax. Territorial climax. The imperial Gangas reached their territorial climax he used to call himself, ये निजको बड़ा बड़ा टाइटल दूसरे गजपति. He used to call himself as Gajapati and Langula Nrsimhadev. तांके जितने रूल करूथे इवन बेंगाल अवध डिफरेंट एडजॉइनिंग एरिया रो जहाँ रूलर माने थिबे से माने डरुथिले तांको. So he was able to instill fear, in Bengal and Awadh. Awadh Bengal रो राजा माने एक्चुअली हमको डरुथिले. And very important, he actually constructed the famous sun temple, that is Konark temple. बाकी कॉमन पॉइंट लिखी पारे. he also promoted arc architecture, great patron of language literature. ये कॉमन पॉइंट जाक जहाँ हम पढ़ी से लिखी पारे. he also resisted attack from Bengal, Awadh, great patron of art and architecture. He also promoted literature जो प्रमोट करेंगे से गोटे बहुत फेमस वी कैन से इंटेलेक्चुअल विद्याधरा को तांके ही प्रमोट करथिले और पैट्रोनाइज करथिले. So this is about the political activity. Okay, so now comes to tankar administration, imperial Gangas administration, administrative significance or the Gangas administration. So mainly kingship based model, hereditary kingship based model, centralized administration with जो king राजा ही supreme leader, जो king is the supreme leader, king will be the supreme leader and he was very wise, ideal, efficient, and great lover of justice. King always try to follow the niti and smriti, dharma, smriti. So very rationally and morally, they advocate the concept of Yogakshama Mahamayam. Bhagavad Gita also says Yogakshama माने कौन, जो सब्जेक्ट्स माने अछंती, जो लोक माने अछंती तांकर अंडर रे से लोक मानकर वेलफेयर पई
तांको किछि आउ चिंता करिया दरकार नहीं, राजा ही सबू वेलफेयर आउ तांकर चिंता सबू करिवो. सो दैट इज द योगक्षेम कॉन्सेप्ट. इवन इंश्योरेंस पॉलिसी भी जो हुए सेटा भी योगक्षेम कॉन्सेप्ट को नहीं होउची. सो किंग वाज द एक्चुअली द पुली और वी कैन से द फलक्रम ऑफ गवर्नमेंट. ओके, से ही जहाँ भी मेन डिसीजन नेबार अछि से ही मेन डिसीजन नेबो. जेते भी टैक्स इम्पोज करियार अछि, इम्पोजिशन एंड एग्जाम्पशन ऑफ टैक्स करियार अछि, बा कोठी युद्ध करियार अछि, कोठी वार पीस डिक्लेयर करियार अछि, सबू कोठी टेम्पल कंस्ट्रक्शन करियार अछि, कोठी लैंड डोनेट करियार अछि, ई सबू निर्देश राजा ही दउथिले. एंड राजा वाज असिस्टेड विथ मिनिस्टर्स. ही was assisted with ministers. So a council of ministers, you can say, assisted with a council of minister. For example, मंत्री, युवराज, सेनापति, युवराज, दाऊवारिका, संधि विग्रहिका, पुरोहित, महापात्र. So mainly assisted with a range of council of ministers. These are the ministers: संधि विग्रहिका, पुरोहित, महापात्र, दाऊवारिका, युवराज, सेनापति, मंत्री. So different kinds of ministers. तांकर जो एम्पायर थिला, एम्पायर was divided into many regions and which was under a governor. The biggest empire was Mahamandalika. Mahamandal. And in Mahamandal there was the governor called Mahamandalika. Okay. So after in the Mahamandal there is one Mandal. The subdivision of Mahamandal was Mandal, and in Mandal the governor was Mandalika. And this Mandal was again divided into Visaya or Bhoga. And Visaya and Bhoga was under Visayapati. That was under Visayapati or Bhojika or Visayapati. And again this Visaya and Bhoga was divided into Grama, and Gram was headed by Gramika. So this was the administration, the provincial administration, we can say. The empire was divided into Mahamandal, Mandal, Visaya, Bhoga and Grama, and the governors, respective governors we have written. Okay. Here also their army consists of elephantry, cavalry, elephantry. So a strong and standing army. Okay. And in this army there are different heads. There are called Senapati, Dalapati, Bahinipati. So military heads: Senapati, Dalapati and Vahinipati. So Patipati and lots of Pati. So now comes to economic significance. And in the economic significance you can write, so land revenue was collected, tax collection होता जोटा कि 1/6 of the production, 1/6 of the produce, and different kind of taxes.
import tax, export tax, import export होतला, so import tax, export tax, even other type of taxes, for example भेट, पाइका, OAR. So different kind of tax were collected. Even दही क्षीर दूध ये सब जिनस भी तांकर एक्चुअली राजार गोटे शेयर थाए. Even also they are doing the overseas trade. Overseas trade. In the overseas trade, they were actually trading elephant. They were also trading diamond and different type of textiles. So trade बहुत भला होतला, trade route भी थिला. Even well connected port was there. Well connected ports. You can see Tamvalipti. Tamvalipti. Even many fines, punishment, fine जाक जो पकाउथिले एज ए punishment. So court fee, fines, salt tax. So different kind of tax. So economy was well developed, we can say. Okay. Now comes to cultural significance, cultural or religious significance. So the cultural significance, अरे बॉयटा लेकिले भेट पाइक सेटा कोन ता परटा सेटा कोन बुझियलन ओवर कोन ना तो OAR, भेट पाइक भेट, पाइक, OAR, they are the different kind of taxes they were actually imposing. Okay. OHOWR OHOUR. It was actually property tax. Okay. Cultural significance. So they were आमे डिस्कस करथलु से माने a great patron of art and architecture, literature and sculpture. So culture को बहुत promote करथले से माने. Okay. So at that time art and architecture was flourishing, we can say. Art and architecture, very much development of art and architecture. सेठी आपण टेम्पल आर्किटेक्चर लिखि परिबे, the Kalinga style of temple architecture. सेठी श्री जगन्नाथ टेम्पल आर्किटेक्चर, Sri Jagannath temple architecture, and the Sun temple, Konark temple architecture. So that is the glory. Oisu temple, white pagoda, black pagoda भी कहती. So we will study this in detail in the architecture session. So very secular in nature, very secular and religious tolerant king were there. वही टाइम रे भी डिफरेंट सेक्ट, वैष्णविज्म, शिवइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, डिफरेंट सेक्ट ऑफ रिलीजियस सेक्ट एक्चुअली आसी थिले टाइम रे. सो मेनी रिलीजियस सेक्ट, वैष्णविज्म, शैविज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म and tribal culture also developed. So they were great lover of justice, great lover of education. They were also given land to Brahmins. बहुत बड़ा बड़ा जगह दिया था Brahmins, as well as to the educational system पाई, temples पाई. They were giving land, big land to the temples, to the Brahmins, or for the education purpose, to the intellectuals, to the scholars. खुशी कि समस्त को पेट्रोनाइज करूथिले आउ जिनस दउथिले. At the time of period they were also patronizing education. So in the time literature development hela. Jaydev Gita Govinda, the famous Gita Govinda,
रिटेन बाय जयदेव एबे भी सेटा बहुत जगह रे सुनिया पे मिलिबो जयदेव गीत गोविंद और जगन्नाथ को बहुत प्रिय गीत गोविंद इवन श्रीधर आचार्य a great novelist and literature ताके भी लिखते even astronomy was also promoted Satyananda was an astronomer who had written Surya Siddhanta. This is different Surya Siddhanta. Out Surya Siddhanta आपन को गुप्ता पीरियड भी मिलिबो पंच सिद्धांत का वराह में ही एक्चुअली लिखित था. So this was Surya Siddhanta written by Satyananda. Even Nilambar Acharya. So Nilambar Acharya also written so many Smritis. Veda, Purana. Even Sarala Das, Mahabharata, very famous. Sarala Das written Mahabharata. There is also evidence of Natya Mandapa, where music, dancing was going on. So great cultural significance, okay. So next we will discuss about the social significance. So social significance is just like similar to the earlier society. The thing is बाकी सब सेम रहिबो जेते डायनेस्टी रो जहाँ लिखी जंती सी वर्ण आश्रम ब्राह्मण रो पोजीशन वर्ण आश्रम धर्म सिस्टम Brahmin's position was actually sacred or supreme we can say. क्षत्रिय माने थिले जे कि युद्ध करूथिले मिलिटरी रे रहउथिले वुमेन्स मानकर एक्चुअली स्पेशली जिंस लिखिबे सिमिलर टू सोमवंशी डायनेस्टी इट भी एक्चुअली डिफरेंट टाइप ऑफ टेंपल डांसिंग देवदासी system temple dancing as well as prostitution, but at the same time इसी जो जिनसो थिला but condition of women was good because we have in the evidence like Chandrika Devi तांके गोटे अनंत वासुदेव टेम्पल निजे तैयारी करथिले अनंत वासुदेव टेम्पल. सो कंडीशन एते भी खराब नथिला किछिटा जगह रे देखिया पे मिलथले सब जिंसो चालीची और साइमल्टेनियसली किछिटा वुमेन्स माने थिले जाकू सिंगिंग डांसिंग म्यूजिक जहाँ तांके सीखी परिवे कॉस्ट्यूम्स जहाँ भी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट्यूम हेयर स्टाइल जा करि परिवे परफ्यूम लगे परिवे ये सब जिनसर भी ट्रेसेस मिलची इवेन किछिटा राजार झील मैंने चंद्रिका देवी जमती गोटे राजार पुत्री तांके अनंत वासुदेव टेम्पल भी बनै थिले. सो मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड. सो दिस इज अबाउट द सोशल सिग्निफिकेंस. सोसाइटी जनरल बाकी जहाँ कॉमन पॉइंट जाक अच्छी डिफरेंट डायनेस्टी रो सीठी सोशल सिग्निफिकेंस लिखिबे नॉट मच इंपोर्टेंस एज पर सोशल सिग्निफिकेंस. बाकी एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर वेरी इंपोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर ताकू नहीं कि आपन लास्ट कंक्लूजनटा देखिबे कि दिस पीरियड इज रियली सेड टू बी ग्लोरियस एज बिकॉज ऑफ देयर इमेंस कंट्रीब्यूशन इन कल्चरल एक्टिविटीज. तो डिफरेंट लिटरेचर्स डेवलप ही टाइम रे इवन कलिंग स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ क्लाइमेक्स भी है जोटी व्हाइट पगोड़ा और ब्लैक पगोड़ा जमी जगन्नाथ टेम्पल और कोणार्क टेम्पल जाक डेवलपमेंट होती जोटा एवं जाए सस्टेन अच्छी जोटा ओडिशार हिस्ट्री ओडिशार इतिहास को एवं जाए आम प्राउड फिल करूँ ये सब जिन तार सिग्निफिकेंस महिमा लिखिकी कंक्लूजन इंपोर्टेंट जहाँ भी आप सिग्निफिकेंस देखिले तो यूनिक फीचर जाक जोटा भी आप मन पड़ो से लिखिकी तार कंक्लूजन देवे. एंड दैट्स व्हाई लास्ट लिखिबे इट इज सेड टू बी द ग्लोरियस एज ऑफ ओडिशा हिस्ट्री.
Okay, so this is about Imperial Gangas. Any doubt from this section?